Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the NCERT solution for class 12th political science, the end of bipolarity, second chapter. Now the textbook question answers. First question, which among the following statement that describe the nature of Soviet economy is wrong? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो सोवियत इकोनॉमी के लिए गलत साबित होती है A. Socialism was the dominant ideology. B. State ownership control existed over the factors of production. People enjoyed economic freedom. Every aspect of economy was planned and contained by the state. So the answer is C. People enjoyed economic freedom. जबकि लोगों को economic freedom प्राप्त नहीं था सोवियत इकोनॉमी में. Question number 2. Arrange the following in chronological order. A. Soviet invasion of Afghanistan. B. Fall of the Berlin Wall. C. Disintegration of Soviet Union. D. The Russian Revolution. So the answer is first, Russian Revolution, that was in 1917. Second, Soviet invasion of Afghanistan, that was took place in 1979. And the fall of Berlin Wall, that is in November 1989. And the last, disintegration of Soviet Union. Question number 3. Which among the following is not an outcome of the disintegration of the USSR? इनमें से कौन सा ऐसा है statement जो disintegration से जुड़ा नहीं है USSR के? The first one is end of the ideological war between the US and USSR, birth of CIS, change in the balance of power in the world order. D. Crisis in the Middle East. So the answer is crisis in the Middle East. Question number 5. Fill in the blanks. The Soviet political system was based on an ideology, and that ideology was A. Socialist. B. Was the military alliance started by USSR? And the answer is yes, that is Warsaw Pact. C. Party dominated the Soviet Union political system, और जो party dominate करती थी, that is the communist one. And D. Initiated the reforms in the USSR in 1985, and that reforms was introduced by Mikhail Gorbachev. And E. The fall of the symbolized the end of the Cold War, that was the fall of Berlin Wall. Question number 6. Mention any 3 features that distinguish the Soviet economy from that of the capitalist country like the US. ऐसे 3 फीचर्स बताने हैं जो सोवियत इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट कंट्रीज से अलग करते हैं. The 3 features that distinguish the Soviet economy from that of the capitalist country like the US can be summed as follows. Number 1, Soviet economy experienced a complex communication network, vast energy resources and efficient transport sectors to connect it remote areas. 2. Soviet Union industries produce every domestic product from pin to car, whose quality might not match with that of the Western technology. हर एक वो चीज पिन से लेकर कार तक सोवियत यूनियन के अंदर ही बनकर तैयार होती थी, लेकिन जो वेस्ट टेक्नोलॉजी से मैच नहीं हो पाती थी. Third, Soviet Union ensured a minimum standard of living for all citizens. सोवियत यूनियन में हर एक सिटीजन को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने का दावा किया जाता था. Consequently, government subsidized basic necessities including health, education, children and other welfare schemes. बेसिक नीड्स की सभी चीजें सोवियत यूनियन अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती थी. एंड देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था. नंबर 5, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड बाय द स्टेट ओनली. जमीन और जितने भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे उन सब पर स्टेट का अधिकार था, गवर्नमेंट का अधिकार था, देश का अधिकार था. क्वेश्चन नंबर 7. What were the factors? ऐसे वो कौन से factors हैं that forced Gorbachev to initiate the reforms in the USSR, जिसकी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को USSR के अंदर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. मिखाइल गोर्बाचेव वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. ये कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन में इन 1985 एंड ही वाज फोर्स्ड टू इनिशिएट द रिफॉर्म. और उन्हें जोर देना पड़ा उनको इन रिफॉर्म्स के लिए यूएसएसआर के अंदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन.
to keep the USSR abreast of information and technology revolution at par the West. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौरान और आगे बढ़ने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए, इनको वेस्ट से कंपीट करने के लिए इन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था. टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद दैट ऑफ द वेस्ट, और वेस्ट नेशंस के साथ नॉर्मलाइज रिलेशंस बनाने के लिए भी ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थे. एंड टू डेमोक्रेटाइज द सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम को भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी था. To loosen the administrative system which exempted ordinary people from the privileges. Question number 8. What were the major consequences? कौन से major consequences थे of disintegration of the Soviet Union for countries like India? The major consequences of disintegration of the Soviet Union for countries like India can be analyzed as follows. Disintegrations of Soviet Union gave an end to Cold War. जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, विखंडित हुआ, तो कोल्ड वॉर का भी अंत हुआ. कन्फ्रंटेशन एंड द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट बिटवीन टू सुपर पावर, और जो दो सुपर पावर के बीच में आइडियोलॉजिकल प्रतिद्वंद्विता चल रही थी वो खत्म हुई. और मिलिट्री अलायंसेस हैड बीन अबॉलिश, और जो मिलिट्री अलायंसेस बनते जा रहे थे वो बंद हुए. एंड डिमांड अरोज फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और विश्व सुरक्षा की और शांति की आवाज बुलंद होने लगी. Multipolar system was surpassed to exist where no single power could dominate and a group of countries could play a crucial role in world politics like named countries. और जो multipolar system था वो अब आकर सामने आया जिसमें कोई single power मौजूद नहीं था, और बल्कि ग्रुप कंट्रीज के ऐसे ग्रुप बन गए थे जो काफी क्रूशियल रोल अदा कर रहे थे, जैसा कि नैम. The US became the sole superpower. यूएस जो था वो सबसे बड़ा सुपर पावर के बनकर उभरा. एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम डोमिनेंट एट इंटरनेशनल लेवल, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे वो यूएस जो था वो डोमिनेट करने लगा. वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बिकेम पावरफुल एडवाइजर. आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सबसे पावरफुल एडवाइजर बना ड्यू टू देयर इकोनॉमिक सपोर्ट, क्योंकि वो आर्थिक स्तर पर मदद प्रदान कर रहा था टू दीज कंट्रीज, इन देशों को ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड. एंड द मोशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एमर्ज एज अ वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ. एंड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, और डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही सोवियत यूनियन मैनी न्यू कंट्रीज एमर्ज. सोवियत यूनियन के अंदर बहुत से नए देश उभर कर बाहर आए विद द इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइस, जो सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट होते चले गए. द ब्लास्टिक and the East European state wanted to join European Union and became the part of NATO. और जितना भी ईस्ट यूरोपियन नेशंस थे वो भी NATO के सदस्य बन गए. And the Central Asian countries took the advantage of their geographical location and continued close ties with the Russia, West China and others. Question number 9. What was shock therapy? Shock therapy क्या था? And was this the best way to make a transition from communism to capitalism? क्या ये सही तरीका था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म तक के जाने का? शॉक थेरेपी वॉज अ पेनफुल प्रोसेस. यस, शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस था ऑफ अ ट्रांजिशन, जिसमें ये बदलाव आना था, जिसमें कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ का झुकाव था. फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम. दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इस पे वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का ज्यादा प्रभाव रहा इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप में. एंड दो इट वेराइज इन इंटेंसिटी, हालांकि ये इसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी, एंड स्पीड अमंग द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में भी. बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर. लेकिन उसके जो डायरेक्शन थे और जो फीचर्स थे वो तकरीबन एक समान ही थे. दिस वॉज नॉट द बेस्ट वे टू मेक अ ट्रांजिशन. ये एक सही तरीका नहीं था जिसमें ये ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक भी मौजूद थे. पहला, रशिया द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लॉस्ट अबाउट 90% ऑफ इंडस्ट्रीज. रशिया जो सबसे बड़ा देश था और जो काफी हद तक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके रखता था, उसने 90% अपनी इंडस्ट्रीज को सेल कर दिया टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज को. एंड इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, जो कि इतिहास में एक सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, विच लेड वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज फॉर द
reconstructing was carried out by market process in place of government owned policy, and hence industries were undervalued and sold at throwaway prices. इसका नतीजा ये निकला कि जो इंडस्ट्रीज थे वो compete नहीं कर पाए एमएनसीज के साथ और उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू किया, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत कम कीमतों पर ये इंडस्ट्रीज बिकी. And third, it systematically destroyed all system of social welfare. जो ओल्ड सिस्टम था सोशल वेलफेयर का, वो पूरा सिस्टम एक तरीके से चरमरा गया था. एंड द फोर्थ, द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन. रूबल का जो कॉस्ट थी वो एकदम से डिक्लाइन कर गई, एंड ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रियल जीडीपी ऑफ रशिया आल्सो डिक्लाइन बिटवीन 1989 to 1999. एंड इसी वजह से जीडीपी जो था रशिया का वो भी काफी डिक्लाइन कर गया 1989 से लेकर 99 तक. एंड द विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज pushed large section of society into poverty. और जब सरकार ने लोगों से सब्सिडीज वापस ले ली, उससे एक बहुत बड़ा सेक्शन जो था पॉवर्टी से नीचे आ गया. It emerged the mafia to start. और इससे माफिया को बढ़ावा मिला टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर माफिया का कब्जा हो गया. एंड प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज. और इस प्राइवेटाइजेशन ने तो एक और नया डिस्पैरिटीज को जन्म दिया, विच डिवाइड रशिया बिटवीन रिच एंड पुअर, जिसमें रईस और गरीब की खाई और बड़ी हो गई, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो आर्थिक स्तर पर बिल्कुल अलग अलग थी. हेंस शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू इकोनॉमीज. इस शॉक थेरेपी ने इस इकोनॉमी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन. और इस पूरे रीजन के लोगों के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ. क्वेश्चन नंबर 10. Write an essay for and against of the following propositions. With the disintegration of the second world, India should change its foreign policy. भारत को भी अपनी पॉलिसी बदल देनी चाहिए थी and focus more on friendship with the US, और US के साथ अपनी फ्रेंडशिप पर जोर देना चाहिए था rather than with the traditional friends, ना कि इस ट्रेडिशनल फ्रेंड के साथ like Russia. Answer. India should not change its foreign policy and focus more on friendship with US, but India is required to maintain healthy relation with Russia. हालांकि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया और यूएस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे, लेकिन उसने एक हेल्दी रिलेशन रशिया के साथ भी कायम रखा. बिकॉज इंडिया हैज एक्सपीरियंस अ लॉन्ग बैंड ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि एक हमारा लंबा म्यूचुअल ट्रस्ट रहा है, इंटरेस्ट रहा है, एंड पॉपुलर परसेप्शंस विथ रशिया इन द फॉलोइंग मैनर. इन तरीके से रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर एक जैसा विजन रखते हैं, एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल वर्ल्ड पावर इंटरनेशनली, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ग्रेटर रीजनलिज्म, डेमोक्रेटाइजेशन एंड विद द डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज लाइक द यूएन. और इन दोनों ही देशों का मानना है कि यूएन जैसे ऑर्गन के बेसिस पर हम देश के दुनिया के अंदर सिक्योरिटी और पीस को कायम कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर. सेकेंड, मोर देन 80 बिलेटरल एग्रीमेंट हैव बीन एक्सपीरियंस. तकरीबन 80 से ज्यादा बिलेटरल एग्रीमेंट किए गए हैं भारत और रशिया के बीच में. दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, जो इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट का 2001 का हिस्सा है. तीसरा, इंडिया हैज बीन बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशन. भारत को अपने इस रिश्ते से काफी कुछ बेनिफिट हुआ है, लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन on international terrorism, access of Central Asia and balancing its relation with China. इन सभी मुद्दों पर भारत को काफी सहायता मिली है. And Russia is also important for Indian nuclear energy. भारतीय न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी रशिया एक अहम हिस्सा है. Plan and assessing India space industry, और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया पूरा समर्थन देता है by giving cryogenic rocket to India whenever needed. जब भी भारत को इसकी जरूरत पड़ती है रशिया उसे प्रोवाइड करता है. एंड कोऑपरेशन विद रशिया एंड इट्स रिपब्लिक लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड हैज आल्सो बेनिफिटेड इंडिया. क्योंकि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ समझौता करके, पार्टनरशिप करके भारत को ये ऑयल फील्ड के अंदर काफी बेनिफिट हुआ है. एंड रशिया इज आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशियन.
सबसे ज्यादा जो सैनिक साजो सामान है भारत को रशिया से ही उपलब्ध होता है एंड इंडियंस मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। भारत को ज्यादातर अपने साजो सामान रशिया से ही मिलते हैं एंड रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट आल्सो। और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे दोनों देशों ने एक साथ काम किया है। These all are the question answers from the textbook. If you like this video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.